I'll kick off with Brigadier Anil Gupta, someone who I speak with very frequently in the national media. Indian terrain and operations including Nagaland, Mizoram and Assam insurgencies, apart from being a prolific writer on security in Sindoor and giving us the right context of the information that was coming in. Colonel Ajay Raina is a decorated Indian Army veteran recognized for his scholarly and literary contributions. Colonel Raina has penned around 20 for Kashmir. His writings often aim to dispel, and this is the critical part of his work, his writings often aim to dispel myths and false narratives surrounding the Kashmir region. An objective underscored in his works like Kashmir Narratives, Myths versus Facts. He features frequently in podcasts and dialogues and forums such as the Jaipur Dialogue, something I follow very prominently, where he lends his expertise as a military historian and commentator. Then there is Zorawar Singh Jamwal. Zorawar Singh Jamwal dedicated to addressing local socio-political challenges in the Jammu region. In his role, he consistently engages with the government and public to advocate for urgent social causes, particularly those impacting youth welfare. Zorawar Singh Jamwal is a vocal proponent of tough action on drug trafficking, emphasizing the devastating impact of narcotics on Jammu's youth and urging legislative unanimity and stronger law enforcement as well as rehabilitation measures. Beyond activism, Zorawar Singh Jamwal is also known in the journalistic realm. He has held leadership positions in the Press Club of Jammu, where he served as Secretary General, Treasurer and Executive Committee member. Then, without any further ado, we have Major General Govardhan Singh Jamwal, someone with a storied record. Major General Govardhan Singh Jamwal is a highly respected Indian Army veteran, academic, environmentalist and author whose impactful career continues to inspire. Commissioned into the army in 1947 by Maharaja Hari Singh of Jammu, he holds the unique distinction of being the only general of the Indian Army commissioned from the state forces before 1947. During the 1965 Khem-Karan War, he commanded the 9 Jack Rifles, playing a pivotal role in combat operations. He has served as military secretary to the President of India and pioneered the world's first ecological battalions, integrating environmental stewardship into military ethos. As a scholar and advocate for strategic awareness, he played a foundational role in setting up the Department of Strategic Studies at the University of Jammu, aiming to document and present the nuanced history of Jammu and Kashmir. That is the essence of what we're trying to achieve here, this notion of Jammuiyat. I've been working in the national media for almost 10 years now, and अभी भी होता है कि अगर कोई मुझसे पूछता है आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली कहाँ से हो, तो जम्मू से है। पहला रिएक्शन आता है अच्छा आप कश्मीरी हो। फर्स्ट रिएक्शन, ये कॉन्सेप्ट की एक जम्मू रीजन है, ये पूरे देश में ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, मैं यहाँ जाता हूँ, अभी बाहर ही ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की का एक वो है, स्टैचू है। आप जम्मू सिटी में जाइए, जनरल जोरावर का स्टैचू है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का स्टैचू है। हम सब इनका आदर करते हैं, पर देश में इनका कोई आदर नहीं करता। और ये किसकी गलती है? ये यहाँ सब कुछ कहते हैं ये कश्मीरी हेजमनी की वजह से इन लोगों को प्रोमिनेंस नहीं मिला, तो ये सेंट्रल पॉलिटिक्स की गलती है, ये कश्मीरी पॉलिटिक्स की गलती है। पर थोड़ा मैं मानता हूँ हमारी भी गलती है। गर्व नाम की चीज़ अगर इन फिगर्स में लैकिंग है, तो ये हमारी तरफ से भी एक ड्रॉबैक है। वी आर ऑल्सो मिसिंग इन दिस फाइट टू गिव proper respect and fight for the honor of these figures. So I feel जम्मू में ऐसा वो जो कहते हैं कि लॉन में भी अगर एक चेयर खड़ी हो जाए ना, उसके लिए लड़ने के लिए 10 पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। It's an over politicized area where too many people are fighting with each other for influence. हाउसिंग सोसाइटी से कोई भी संस्था ले लो, वहाँ पे इंटरनल टसल ही चलता रहता है। कॉमन डोगरा आइडेंटिटी टू फाइट फॉर इट is something that's missing. तो यही है मिशन कुंवर योगी मेमोरियल ट्रस्ट का, इन कोलैबोरेशन विद द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी, एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करना, ग्रेट माइंड्स, ग्रेट थिंकर्स, ग्रेट सोशल वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और ये क्वेश्चन पूछना कि द नोशन ऑफ जम्मूयत, डोगराइयत, डुग्गर प्राइड, इसको एक नेशनल मूवमेंट, नया भारत की टेपेस्ट्री में ऐड करना, क्या ये मुमकिन है? क्या हम इसे मुमकिन बना सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के लिए कुंवर योगी मेमोरियल ट्रस्ट
डोगरा लिटरेचर को हम बढ़ावा देते हैं, डोगरा आर्ट को हम बढ़ावा देते हैं, डोगरा स्कॉलरशिप को हम बढ़ावा देते हैं, पर डोगरा प्राइड के लिए भी हम एक एमिनेंट प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं। और कोलैबोरेशन विद द इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स एट जम्मू यूनिवर्सिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑफ अस। Collaboration with different stakeholders, academics, cultural leaders, and even central leaders, like the minister who will join us in a short while, is essential for that. As you said on the very onset, I little disagree with it कि डोगरा ही डोगरे के अगेंस्ट है। There can be certain vested elements जिसके कारण ये एक धुंधली सी पिक्चर दिखती है कि जब डोगरियात की बात आती है तो शायद डोगरा ही डोगरे के साथ लड़ता है। ये नहीं पूरा सत्य। और मैं ये कहूँगा कि डोगराज हैव नॉट लॉस्ट इवन ए सिंगल मूवमेंट। दे हैव वन ऑल द मूवमेंट्स हैंड डाउन एंड दे हैव स्कोर्ड स्प्लेंडेड विक्ट्रीज। और जब मैं इस बात की बात करता हूँ तो ये मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं करता हूँ, इतिहास में ये लिखा है। विडंबना ये है हम इतिहास पढ़ते कम हैं। अगर डोगरा इतिहास की बात करूं, वन ऑफ द ग्लोरियस हिस्ट्री इज़ ऑफ डोगरास, जो आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। अगर इस पे चर्चा करनी होगी तो सर्वप्रथम परम आदरणीय हमारे मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल साहब, जो आज 98 वर्ष पूरे किए हैं, ऐसे ही एक लिविंग लीजेंड कर्नल शारक देव सिंह जी, पिछले हफ्ते उन्होंने 100 साल पूरे किए हैं, जिनको द ग्रेट वॉरियर ऑफ योजिला कहा गया, जिन्होंने उस समय टैंक वहाँ पहुँचाए और हमारे जम्मू कश्मीर को सेव किया था। ये डोगराज में ही पाए जाएंगे। और मैं ये कहूँगा कि डोगराज ने वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो कश्मीरी हुक्मरान सोच भी नहीं सकता। ये फैक्ट है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कहूँगा फ़र्क इतना है कि 1947 से पहले भी डोगरा का एक स्वर्णिम इतिहास रहा और 1947 से उससे भी ग्लोरियस इतिहास टिल डेट है। समझने की ज़रूरत है। 1947 से पहले अगर हम महाराजा गुलाब सिंह जी से ही शुरू करें, ज़्यादा पीछे ना जाएं, वो अपने आप में ही इतने विजनरी थे। उन्होंने एक जम्मू को उस समय जम्मू कश्मीर, गिलगित, स्कार्दू, तिब्बत वह आदि बनाया जब पूरा भारतवर्ष आहिस्ता आहिस्ता इसके छोटे बड़े राज्य अंग्रेज़ों के अधीन हो रहे थे, गुलाम हो रहे थे। ये दूरदर्शिता ये डोगरा जीन्स में है, ये हम डोगरा सभी वॉरियर्स में है। क्योंकि वो जो तब लड़े, जनरल साहब हमेशा कहते हैं, तो वो सिर्फ राजपूत नहीं लड़े, वो सारे डोगरा लड़े, हर कास्ट, कम्युनिटी, कलर, रिलीजन के लड़े। इसीलिए हम डोगरा कहलाते हैं। हम में और उनमें ये फ़र्क है, दे गेट यूनाइटेड बिकॉज ऑफ रिलीजन, वी गेट यूनाइटेड बिकॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रिज्म। और राष्ट्रवाद के कारण हम डोगरास को बनाया जाता है। और डोगरास ने कभी भी छोटी लड़ाई नहीं लड़ी है, मेरा मानना है। डोगरास हमेशा राष्ट्रवाद के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, नेशनल इंटीग्रेशंस के लिए और सिविलाइजेशन की लड़ाइयाँ लड़ी हैं डोगरों ने। 1947 के बाद अगर हम आ जाएं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1953-52, 1952-53 सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब यहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान, जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के नौजवान और कई जम्मू की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उसके साथ जुड़ी डोगरास इकट्ठे हुए, एक आंदोलन शुरू हुआ। ये सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके चंद हफ्ते पहले भी एक आंदोलन शुरू हुआ था प्रिंसेस ऑफ वेल्स कॉलेज, जिसको आज GGM साइंस कॉलेज कहते हैं। वहाँ पे तब वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला घोषित हो चुके थे। उनका एक कार्यक्रम था साइंस कॉलेज में। वो चाहते थे हमारे तिरंगे के साथ उनकी पार्टी का झंडा भी वहाँ लगे। उसका विरोध सबसे पहले जम्मू के स्टूडेंट्स ने, यानी कि हम सब भी, आप सब भी एक वक्त में स्टूडेंट्स रहे हैं, उस समय जम्मू के स्टूडेंट्स ने उसको टूथ एंड नेल अपोज किया था और एक आंदोलन खड़ा किया। पहली बार डोगरों में इतनी बर्बरता हुई, लाठीचार्ज और टेयर गैस शेल जम्मू ने फर्स्ट टाइम विटनेस किया था।
लेकिन जम्मू के लोग हारे नहीं। जम्मू के लोग सब इकट्ठे रहे और अल्टीमेटली 9 अगस्त 1953 को शेख साहब इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए डोगरास की यूनिटी देखते हुए, छात्रों की यूनिटी को देखते हुए, कि उन्होंने आरएसपुरा में एक ऐसा फ्रस्ट्रेटेड बयान दिया एंड देयर वाज ए फॉल ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये भी जीत डोगरास की थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डोगरास ने कभी कोई मूवमेंट हारी नहीं और आज तक जीती है। अगर उसके बाद जाएं, जम्मू की हर एजिटेशन जम्मू के लोगों ने लड़ी और अपना हक जो है लिया। ये दर्शाता है कि डोगरों में इंटेलिजेंसिया की, डोगरों में बहादुरी की कोई कमी नहीं है। आयुष्मान से बड़ा एग्जाम्पल आज के वक्त में कौन होगा? ही इज़ ऑल्सो ए डोगरा एंड डोगरास का मान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है। वी शुड फील प्राउड। अगर आगे चलें, 1966-67 की एजिटेशन, there were number of demands, but one of the important demands was independent university for Jammu students. That was the demand for University of Jammu. For that also Dogras fought. जम्मू के स्टूडेंट्स आगे निकले, लेकिन उसके लिए शहादतें दी जैसे बुजुर्ग देते आए। हमारे 4 नौजवान शहीद हुए, जिनका शहीदों का मुजस्मा साइंस कॉलेज के सामने आप देखते हैं। ये उनकी कुर्बानियाँ थी। वो भी बहुत बड़ी एजिटेशन हुई। तब भी उस समय की सरकारों को अगर घुटने पे किसी ने लाया तो डोगरों ने लाया। उसके बाद में 1979 सरदार वरयाम सिंह जी शहीद हुए पुंछ में। किसके लिए हुए? पूरा जम्मू इकट्ठा हुआ एक बार फिर। कुल मिला के मैं आयुष्मान ये कहूँगा कि जम्मू जो है वो एक राष्ट्रवादी सोच के लिए, राष्ट्रता को मजबूत करने के लिए हमेशा लड़ा। उसको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी, सहना भी पड़ा, लेकिन कभी भी डोगरा ने राष्ट्रवाद के लिए कभी पीछे नहीं हटा। और आज भी मनु खजूरिया सिटिंग नेक्स्ट देयर, ये भी आपकी तरह प्राउड डोगरा हमारी बहन है, जो वॉइस ऑफ डोगरा लंदन में, फॉरेन में आज भी अगर डोगरों की आइडेंटिटी इंटरनेशनल लेवल पे है, ये यंग बच्ची जो है वहाँ पे कर रही है। हमें अपने आगे पीछे देखना होगा, ऐसे मजबूत करना होगा नौजवानों को, एक दूसरे के साथ खड़े होकर प्रयास करना पड़ेगा। और मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि उस समय भी जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बर्बरताएँ हुई थी, द फादर ऑफ जर्नलिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाला मुल्क राज सराफ जी, उनकी एक अखबार होती थी कश्मीर पोस्ट, उसमें उन्होंने लिखा था एट्रोसिटीज ऑन स्टूडेंट्स ए गुड ओमेन। छात्रों पे अत्याचार बहुत अच्छा शुभ संकेत। और अगर आप उस कश्मीर पोस्ट के आर्टिकल को पढ़ेंगे, आपको नज़र आएगा कि उस समय की जो सरकार थी उसको पिक्चराइज इस तरीके से किया था। अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस में जब मैं बात करूं जी, तो कंस की हुकूमत और जम्मू के नौजवानों को उन्होंने ग्वाला बताया था। उनकी अखबारें भी बंद हुई, जम्मू की बोली तब भी बंद नहीं हुई। तो मैं ये कहूँगा आयुष्मान जी कि आज भी डोगराज हैव नेवर लॉस्ट, डोगराज हैव ऑलवेज वन, लेकिन चंद वेस्टेड इंटरेस्ट शायद कुछ ऐसा करते हैं। और डोगराज, सबसे बड़ी बात है, पॉलिटिकल आउटफिट्स बहुत होंगी यहाँ पे, हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से वाबस्ता है, लेकिन जब बात जम्मू की आती है, जब बात राष्ट्र की आती है, तो डोगरे पूरे हिंदुस्तान में एक एग्जाम्पल हैं। ये अपने आप को छोड़ देते हैं, राष्ट्र के लिए जिंदा रहते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। जी, थैंक यू। Defending the boundaries of ancient India under the Dogra dynasty, the great stories of valor that emerged post 1947, वो कहानियाँ काफ़ी मिलिट्री पर्सनल के थ्रू मेरे को मिली थी when I first started my research, not the common Dogra, primarily through military personnel. Why has that disconnect been created? Ayushman, with due respect to my co-panelists, despite all that, why are we not being recognized? Why we are always hyphenated with Kashmir? Why we are being looked at with the prism of Kashmir? That is the theme. And for that, we need to analyze as to what has gone wrong. First of all, when we talk of Jammuiyat, it gets confined to Jammu district or areas around it. You see, Jammu as a Dogra state was well defined. Its boundaries were well defined.
its principalities were well defined. But Jammu as a region, after independence or after merger, was never defined. And what was never defined was Dogra. Who is a Dogra? Most of you must be knowing that in the army, there used to be concession for enrollment and recruitment in the army for the Dogras, which Mufti Muhammad Said, when he became the chief minister the first time, he stopped it. And the logic given was that there is no definition of a Dogra. So how do we give a Dogra certificate? This issue became a very big issue. And when Umar Abdullah was contesting to defeat him, he promised during his election rallies that I'll restore it. And to his credit, the first thing he did when he took oath was to order a committee, high-powered committee, to revive this Dogra certificate. You all will be surprised. It was revived, but called off within 24 hours. Same Umar Abdullah, whose cabinet approved it, after 24 hours announced that I withdraw this. What was the reason? The reason was that in this bill, Dogra was defined. And Dogra was defined as anybody residing south of Pir Panjal, irrespective of religion, caste and creed. The Kashmiris couldn't digest it. Shahid Ali Shah Gilani and his party, Hurriyat, they made halla gulla, so much hue and cry, and they had so much of influence that within 24 hours, Umar Abdullah announced that this bill is withdrawn. Look at it. And what was their logic? Sheikh Gilani said, Sheikh Mohammed Gilani said that, what is his name? Gilani Sahib. He said that we enjoy majority and domination over Jammu because we have an identity known as Kashmiri identity. Moment you give them Dogra identity, they will stand up against us, and the valour of Dogras, they will not let us survive. So whatever we have gained so far, we will lose if we give them an identity. So ladies and gentlemen, if at all we want to be recognized globally, nationally, and even locally, see, even Jammu people are not very serious about itself. The gathering strength shows here how much we want Jammuiyat. We live in a cocoon. We are very happy with what's happening with us. We are not worried about such. For them, this Dogriyat, Jammuiyat is very minor thing, I'm telling you. Talk to a common young man, he's not bothered about it. Because he has been brought up that way. So if we want to bring Jammuiyat or Dogriyat, we have to insist on our Dogra culture, Dogra identity, Dogra heritage. And we have to call it Dogriyat, not Jammuiyat. I'm not with it. We must call it Dogriyat. Dogron ki. So देखिए, Kashmir was known for Sufism. But what did the people when who came to power, what they did? Kashmiriyat. You never heard of Kashmiriyat. They are known for Sufism. But to give it identity, Kashmiriyat. Because they wanted to be unique, different from others. And they wanted to express our identity, the Dogra identity. Our forts, they were left to themselves. Our culture was deliberately like, our language was, most of you, I don't know, those of my age group, we read only Urdu. Nothing was taught to us. When I went to Sainik school, I was handicapped. I didn't know anything other than Urdu. I didn't know English. I didn't know Hindi. I had to contest there because I didn't know any of these languages. But this is what was given to us. Even Dogri was not very often spoken. Schools, in any case, there was no question of Dogri being taught. We were taught a history book called Hamari Kahani, and Hamari Dunya was our geography book. I don't know how many of you have read those books. And Hamari Kahani never talked of Dogra rulers. Hamari Dunya never talked of Jammu as an empire. It never talked of that. Right. So if we want this, you see what I'll tell you another thing. The people
the party which came to power after 48, they had one slogan, Ek Qaid, Ek Jamaat, Ek Janda. And they ensured that to kill Dogra identity, they started terms which are unnatural. Chenab Valley, Pir Panjal Range, Pir Panjal area. They wanted to divide the Jammu region. Umar Abdullah said in the parliament, what is Jammu? 2.5 districts. So, if we want to be identified, to be recognized as a force to reckon with, as a people belonging to a particular region, which is as good and as bad as Kashmir, we need to revive Dogriyat. Thank you. Right. Thank you, Janul sir. Sorry, Brigadier sir. And I want to take that question to Colonel Raina, because I think we've got suppression of Dogra identity and how certain terms became so mainstream that there was no room for Dogra identity. So it seems that there is suppression, yet pride, and there is an idea that's getting squashed between two things. Where do you stand on that? चलो वो साड़ी अंदर वाली प्रॉब्लम है, बाहरों दिखने गड्डी बड़ी स्ट्रांग है रोग, लेकिन अंदर जेह्ड़े फिशर्स हैं उन्हें एड्रेस करना जरूरी है। असें हिस्ट्री गल कीती है, पास दिखा, एंड मैं जियां आखना मैं दोनों एस्टीम स्पीकर्स कन्नै फुली सहमत हाँ। हूँ करना केह् है, देखो मैं तो डोगरीत कन्नै भी सहमत नहीं, जिस चीज़ की राइम करे कश्मीरियत कन्नै मैं डोगरीत की आखा, मैं डुग्गर आखा, जो कुछ होर नवा वर्ड मे भी अगली बार सुनाई चलाचे। तो मैं थोड़ा बाहरले पासे चलिया, जिसी तुम आखे दसो नैशनल स्ट्रीम उत्थे मैं हमेशा अपने आप ही पुंछी डोगरा करिए रिकगनाइज करना। मेरी रूट्स बाग च जड़ा अज POJK च है, मेरी डोगरी भी थोड़ी इन्फ्लुएंसड है पुंछी कन्नै, थोड़ा यू हैव टू बेयर विद मी। आखने मतलब यह अस पुंछी बनिए, अस भद्रोए बनिए, अस बसोली वाले बनिए, भड्डू वाले बनिए। फिर वो गल आई कि जम्मू च गै रहा, फिर जो साढ़े महाराजा हरि सिंह ने ओथ ली ही उन्हें आख्या हा मेरा इको धर्म है, इको रिलीजन है, वो है जस्टिस। अस उसी भुलिए। और अज मैं तुसें फैक्ट सुनाना, अस जेह्ड़ा सैकुलरिज्म की गल करना, हालांकि मैं सैकुलरिज्म मेरा अपना बड़ा रेडिकल आइडिया, ये मंच नहीं है उस बारे गल करने च। डाइवर्सिटी की गल करचे, जिथे लोग डाइवर्स हैं लेकिन यूनिटी कन्नै रौंह्दे न, ते तुस जम्मू कोला वैस्ट जाए देखो, नैक्सट जगह कुत्थे थ्होंदी है तुसें? एक देश का नाम दसो जम्मू के वैस्ट अगे आह्ले पासे जागो, तुस वैस्ट एशिया, यूरोप, मनोवर लंडन जाए, नहीं पता उत्थे क्यों आ अज। अस लास्ट पोस्ट हाँ जिथे अस डाइवर्सिटी भी है तो यूनिटी भी है, जिथे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धि भी हैं, तिब्बती, तू गिनी चलो। अगर इंडिया या भारत जिसे अस एंटिटी आखने उसी छोटा कर मिनिएचर रूप देखचे तो जम्मू है और लास्ट पोस्ट है। साड़ी अहमियत असें समझनी पौनी है। साढ़े राजा महाराजाएं देश की बाउंड्री तय की, तिब्बत तक ले गए, स्कार्दो ले गए, उनका बस चलता तो जनरल जोरावर सिंह और 2 साल रोंदे तो उन्हें करावरम टप्पी जाना हाँ, लेकिन वो अदों को जियो पॉलिटिक्स अलग ही। अज अस गाजे ना, असें छड़ी तलवार के चुकी, साढ़े इत्थे कोई हिस्टोरिक मंदिर नहीं है, इसलिए अज अस आखने अस लिटरेचर नहीं लिखने क्योंकि साढ़े असें सिक्खिया कि नहीं। जो जरूरत पई तलवार चुकी चली पे घरों, वापस आए नहीं आए, कोई चित्राल च मुक्किया, कोई तिब्बत च मुक्किया। ये साडा DNA है। तो इसलिए हूँ मेरा पर्सनल व्यू है इस टाइम उपर कि असें हूँ अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान और अपना जो हक है वो लड़ना पौना है। बगैर रोए तो माँ दुद्ध नहीं पिलांदी, बच्चे ही सारे पता है। इनफैक्ट डुग्गर राज, जम्मू प्रदेश, जम्मू स्टेटहुड, जम्मू UT जी थोड़ी गल्लां करनी शुरू हुई, मैं बड़ा वोकल एडवोकेट हाँ। और अगर अज मैं मंच पर एक प्लेटफॉर्म पर बेइए इसी अस लॉन्च नहीं कराने, उसका भी एक रीजन है, अगेन नैशनलिज्म। इसलिए साढ़े देश के हालात थोड़े जे डवाडोल न। तुम दिखा दो कदे वोट चोरी वाला चली पौंदा, कदे मराठा एजुकेशन चली पौंदा। अस नहीं चाहते कि इसलिए CIA डीप स्टेट की गेम चला दी है, इसलिए साड़ी स्टेट साड़ी रजीम चेंज करने वाली, उसलिए अस होर विवाद पाचे। ये साड़ी सोच है। अस आख्या ठीक है, अस अपनी आवाज़ मार्च महीने दिल्ली च रखगे, अदों तक चुप रौह्ने, लेट द थिंग स्टेबलाइज। दिस इज हाउ वी थिंक। जिले जोरावर ने आख्या कि अस क्या आखदे उसी नैशनलिज्म साढ़े अंदर भरे दा। ब्रिगेडियर साहब ने आख्या कि असें हमेशा देश लिए सोचा। दिस इज हाउ वी थिंक। तो मेरा यंग जनरेशन कन्नै इन्ना रिक्वेस्ट है, मेरी तुस अगर मेरे फोन पर फोन करके, फोन उत्थे पेदा ते उत्थे रिंग टोन अस डोगरे आखने शाने कन्नै, तुस भी लाओ,
10 मिनट अपने घर मेरी बेटी आपे चली कल उसी छोड़ी आया मैं दिल्ली LSRC लेकिन उसी मैं आख्या बेटा जम्मू वो समझती है कि मैं डोगरा पहले हाँ दैट आइडेंटिटी हूँ अंग्रेजी पढ़ा अंग्रेजी बोल मनोर भी शायद LSRC प्रोडक्ट है तो वो साडा जीवन का सच है बच्चे जाना है प्रोग्रेस करना है लेकिन रूट नहीं भुलनी और रूट भुलगन तो गलती साड़ी है तो मैं इसलिए अगे अगे फॉरवर्ड लुकिंग विचारधारा विश्वास करना जो होई आ सबक सीखने चाहिए साडे में एक मेन प्रॉब्लम इतने रही अस एजुकेशन करने फिर एजुकेशन बंद हो जाता जवाल साहब ने बड़े गिनाए 4 5 6 लेकिन अगर 70 साल 7 एजुकेशन के हुए असें किया छोटे छोटे नुकते पढ़े फिर असें अपनी एक डिमांड रखी उसी पूरा कराया हूँ शायद टाइम आई है असें बड़ा डिमांड करिए पहले अपने आप ही सिक्योर करना पौना फिर अंदर दिखन लगे कुत्थे केह् करना कुत्थे कन्नै केह् करना तो इस संदेश कन्नै यंग जनरेशन बैठी सामने असें खपाई ओड़ी अपनी उम्र जो भी करना कीता तुस फ्यूचर हो साडा तुस भविष्य अस इयो उम्मीद करने कि जिथे भी जाओ डोगरा असें दुएं गाने करने की जरूरत नहीं है अस डोगरे हाँ आखने शाने कन्नै एह्दे पर तुस रखो अपनी डोगरी के अगे रखो एंड जिस डोगरा आखियो कोई तुंदे पर शक भी नहीं कर सकता कि तुस एंटी नेशनल हो या तुस सैपरेटिस्ट हो वो साडे कन्नै टैग लग्या कि नहीं कि असें हरकत कीती कि नहीं इससे कन्नै मैं अपने वाणी विराम दिना दिस इज हाउ आई लुक एट इट थैंक यू। तो एक बात पे तो सहमति है गिवन द फैक्ट कि हर डोगरा फैमिली में एक सर्विंग आर्मी मेंबर होता है हर डोगरा फैमिली उसके रूट से ऐसे कनेक्टेड है और कि जैसे कश्मीर में सेपरेटिज्म थ्राइव किया जम्मू में तो जड़ ही नहीं लेने दिया सेपरेटिज्म को कोई आइडिया ही नहीं उसका जेनेसिस होने दिया जम्मू के अंदर लेकिन तब भी अगर हम अपने नेशन बिल्डिंग की अगर बात करते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये पूरा मैसेज है कि अपने रूट्स से अटैच्ड हमारी नेशन बिल्डिंग होनी चाहिए नया भारत हैज टू बी कनेक्टेड टू इट्स पास्ट is what Prime Minister Modi has put forward as a national vision. तो जम्मू कल्चर जो इतने टाइम से साइडलाइन हो चुका है जिसके सेंटर में प्रोपोनेंट्स भी उसका नीडल इतना मूव नहीं कर पाए उसको इतनी अहमियत नहीं दे पाए नेशनल नैरेटिव्स में तो लेकिन 6 years पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और ये क्वेश्चन मैं जनरल जामवाल से पूछना चाहूंगा सर आपने तो 1947 से देखा है आपने 1947 से देखते आ रहे हो जितनी मूवमेंट्स हुई हैं जितना चेंज इस ये देश ने एक्सपीरियंस किया है और जम्मू ने जो एक्सपीरियंस किया है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सारे को पहले मैं योगी ट्रस्ट की मुबारकबाद दें कि वो हर साल कोई ना कोई अच्छा प्रोग्राम साढ़े सामने रख देन असें मजबूर कर देन सोचने पर कि अस जेड़े इत्थे बैठे दे हां वो डोगरी वास्ते डोगरी भाशा वास्ते डोगरी कल्चर वास्ते हिस्ट्री वास्ते क्या कराने आ वो दिल्ली दा नहीं है इस बारिश विच इस मौसम विच बैठे दिन मेहरबानी तुस भी आए बहुत अच्छा एक चैलेंज है साढ़े वास्ते कि अस सारियां जंगां फतह कर लियां जोरावर सिंह ने लद्दाख फतह कर लिया तिब्बत फतह कर ली मानसरोवर लेक फतह कर ली 22 रियासतां लद्दाख दियां फतह कीतियां कल्ला आदमी इत्थों चलिया लद्दाख तो मैं बहुत स्टडी की 1961 ਵਿੱਚ पूरी स्टडी की थी फिर 22 रियासतां गिलगित बल्तिस्तान दियां फतह कीतियां गिलगित बल्तिस्तान 22 स्टेट्स हिमालय के पार तुसें करगिल की लड़ाई देखी होनी है कुछ लोग कितनी मुश्किल लड़ाई थी वो क्योंकि उस वे टेलीविजन आइए दा पहले जोरवर ने केह् कीता तुसें किताबां च भी नहीं पढ़िया तो उन्हें दिन कोई फोटोग्राफ भी नहीं होंदे पर करगिल की लड़ाई ते दिखिया तुसें भी इंडियन आर्मी कियां लड़ी ही किन्नी मुश्किल हुई किन्नियां कैजुअलिटीज दित्तियां से मैं गया करगिल दिखिया हिंदुस्तान की 500
27 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ JNK ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ 75 ਹੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਬਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਹੀ, ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ, लद्दाख शामिल।